we are going to start now. So today we are going to revise what we have learned in last 8 or 9 lectures. Okay, Mayank, Esa, how are you both? Good, sir. Mayank, Mayank, are you there? Yes, sir. So let us start. सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टैक्स. ठीक है, तो टैक्स इज द कंपल्सरी contribution to the government, and it is levied by the government on workers' income, that is your salary income, your profit, or sale of your property, that is your profit on sale of property, that is on a capital gain, and any other sources. So tax is what? It is a compulsory contribution. Why government is collecting the taxes? Government is collecting the taxes for the purpose of expanding the development and for better infrastructure and support for the purpose of the businesses. Now, what are the types of taxes in India? There are majority two types, direct tax and indirect tax. Under direct tax, are two party only, that is business or a people who directly pay to the government. So there are only two party, person directly pay the taxes to the government. Same for example, income tax. Income tax is paid by SSC directly to the government. Next is the indirect tax. So indirect tax में तीन पार्टी होती है. पहला होता है बिजनेस और अ पीपल. Secondly, the consumer who is buying the goods or services from such business people. And third one is the government. So whenever the consumer is buying something from the business people will charge the tax on it, and such tax is paid by the consumer to the businessman, and now the businessman is paying the tax to the government. So in the indirect tax there is a three party. Under direct tax there are two parties. So types of direct tax: इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड लोकल टैक्स. यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पर्सन पे टैक्स लगता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है. इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आएंगे? जीएसटी, कस्टम, ये दोनों टैक्स अभी नहीं है. फिर आएगा एक्साइज. ओके, so this are the indirect taxes. Now what are the difference between direct tax and indirect tax? So direct tax is levied on the income of the person. However, indirect tax is levied on the product or services. This is directly paid by the person on whom the tax is applicable. However, this is paid by the businessman, but it is paid by the person who is consuming the goods or services. So it is paid by somebody else to the government, but it is paid by the ultimate consumer. It is paid after income is accrued or received. It is paid before the goods or services reach to the tax bearer. तो accrue का मतलब हमने बोला था, accrue का मतलब क्या होता है? accrual का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं पता है? सर अक्रूड हो गया कि जो हमने की हमारे बुक्स में दिखाया है पर वो बाद में मिल रहा है हमें. बैंक में नहीं आया है. ठीक है, हाँ, बैंक में नहीं इनकम आया. अक्रू हो गई है. ठीक है, यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ अ टैक्स मतलब टैक्स इवेजन इज पॉसिबल. However, in the indirect tax, tax evasion is something is more not possible. It's self-designated to prevent the tax evasion because there is a chain running. That is, the person A is selling the goods to person B. The person B is paying the GST to the person A, and person A is paying the tax to the government. So here
whatever the tax is paid by B to A, B will able to take the GST credit on such bill. So there will be a chain working for the purpose of a GST system. So here the tax evasion is not possible. Here the tax collection is difficult because people may hide their income or lower their income by the wrongful means. Here the tax collection is easier. Here the tax burden will increase on the basis of the income of the person. Here the tax burden will remain same whether it is a poor or a rich. मतलब indirect tax और direct tax की these are the main differences. Now what is the income tax? So income tax में कितने सेक्शन है हमने पढ़ा था 298 सेक्शन. इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 298 सेक्शन है. Now we will discuss the type of the person. Type of the person. So as per section 2 subsection 31, person includes individual. Individual का मतलब क्या होता है? Normal human being. ठीक है? Next, it will include the HUF, that is the Hindu undivided family. उसमें जो मैनेजर होता है या फिर मेन पर्सन होता है, हेड ऑफ द फैमिली, इज कॉल्ड एज ए कर्ता. और बाकी के मेंबर को हम क्या बोलेंगे? को पार्टनर. और इसमें कौन कौन से पर्सन आएंगे? एचयूएफ में ऑल द पर्सन लिनियरली डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन कर्ता एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ एंड अनमैरिड डॉटर. मतलब अगर डॉटर का मैरिज हो गया है तो वह एचयूएफ में नहीं आएगी, लेकिन अनमैरिड डॉटर है तो वह एचयूएफ में आएगी. नेक्स्ट इज द कंपनी. तो कंपनी का मतलब क्या है? जो भी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और a Companies Act 2030, it will be considered as a company under the Income Tax Act 1961. Now next is the firm. firm का मतलब क्या होता है? दो या उससे ज्यादा लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना के बिजनेस कर रहे थे और वो लोग ने म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लिया है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपस में बांट लेंगे अंडर दी प्री डिटरमाइंड रेशियो. तो उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म. सो इट इज द एंटिटी व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. नाउ इट इज आल्सो इंक्लूड द एलएलपी. एलएलपी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. दैट इज द एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर है उसे बोलेंगे एलएलपी. नेक्स्ट वन इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन. So when the person combine together for the purpose of a joint objective or a joint purpose, so it will become the association of person. It does not become the partnership under the law. So AOP can have a firm, company or a association and individual at its member. लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल ही आएंगे, नॉन इंडिविजुअल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में नहीं आएंगे. समझ में आया? एओपी में कोई भी बंदा आ सकता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, फर्म, कंपनी, ऑन अदर एसोसिएशन एट एक्स्ट्रा. लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल ही आएंगे बिकॉज इट्स नेम ऑलवेज सजेस्ट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है? नेक्स्ट इज द लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी में क्या आएगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत एट एक्स्ट्रा. नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. तो जो भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में जो भी एस्टेब्लिशमेंट या फिर कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश हुए हैं अंडर द पेस्टियल एक्ट उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. सेम फॉर एग्जांपल मद्रास यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द पैन कार्ड. हमने ये पढ़ा था कि पैन का जो फोर्थ लेटर होता है उसके हिसाब से हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि वो पैन कार्ड कौन से पर्सन का है. ठीक है? तो अगर पी आता है फोर्थ लेटर तो इट इज फॉर द कंपनी. अगर फोर्थ लेटर इज पी
then it is considered as an individual. H is for HUF, F is for firm, A is for AOP, T is for trust, B for body of individual, L for local authority, J for artificial judicial person and G for government. आई होप इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होगा. ठीक है, हम पैन नंबर से ही डिटरमाइन कर पाएंगे कि वो कौन से टाइप ऑफ पर्सन का है. समझ में आ गया? आपको क्या देखना है? फोर्थ लेटर ऑफ योर पैन कार्ड. ठीक है मयंक, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है. नेक्स्ट इज द रिलेवेंट टर्म्स ऑफ द इनकम टैक्स. तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो भी होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर. असेसमेंट ईयर का मतलब होता है 1 साल आगे का ईयर. फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे का ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर. अगर आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 है तो आपका असेसमेंट ईयर होगा 2020-2021. ठीक है. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ एसएससी. तो एसएससी का मतलब होता है जो भी बंदा अंडर द हेड इनकम टैक्स एक्ट लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम. एनी अदर सम का मतलब होता है इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी एट एक्स्ट्रा, उसे बोलेंगे एसएससी. जो भी बंदा टैक्स पेएबल के लिए लायबल है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट उसे एसएससी मान लेंगे. और जो पर्सन अपना असेसमेंट करता है जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसे बोल देंगे असेसिंग ऑफिसर. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू हेड्स ऑफ द इनकम. सो देयर आर 5 हेड्स ऑफ द इनकम. पहला है, कौन कौन से हेड है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बोलो बोलो. ऐसा salary, house property, business and profession, capital gains, income from other sources. राइट. तो पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी. So whatever you are earning from your employment, that will become under the head income from salary. Even non-monetary item will also come under the heads of salary. Same for example, you are having the facility provided by from your employer, that is your rent-free accommodation, rent-free furniture, or you have been given a car facility from your employer, then it will form part of your income from salary. So salary कौन कौन से सेक्शन में आता है? अंडर द सेक्शन 15 to section 17 of the income tax act. Now next one is the income from house property. तो आपने जो भी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है उसका जो भी अर्निंग आती है वो कहाँ पे आएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इट इज कंसिडर्ड अंडर द सेक्शन 22 to 27 of the income tax act. Next is the income from business or profession. So whatever the profit you are generating from your business will be considered under the head income from business or a profession. हमने बोला था प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रग्नेश, प्रोफेशन का मतलब? प्रोफेशन है कि स्पेशलाइजेशन बिजनेस. जो भी बंदे के पास स्पेशलाइज्ड स्किल है एंड इट इज आल्सो अंडर द सेपरेट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. सेम फॉर एग्जांपल सीए, डॉक्टर, इंजीनियर एट एक्स्ट्रा, उससे हम क्या मान लेंगे? सीएस, सीएमए एट एक्स्ट्रा, उन्हें उसे हम प्रोफेशन मान लेंगे. ठीक है. सो जो भी इनकम फ्रॉम योर बिजनेस और प्रोफेशन होगी वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आएगी. इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 28 to 44 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. नाउ अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल आउट की है, सेम फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी, योर इन्वेस्टमेंट दैट इज योर शेयर, म्यूचुअल फंड एट एक्स्ट्रा, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा तो वो इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में चार्जेबल होगी एंड इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 45 to 55 of the income tax act. Now income from other sources. जो भी इनकम हमारी
आगे वाले फॉर हेड में नहीं आती है, वो कहाँ पे आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। सेम फॉर एग्जांपल सेविंग इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट, brokerage commission, if it is not covered under the business income. It is covered under section 56 to 59 of the Income Tax Act. Now we will considering the definition of salary. So definition of salary में क्या क्या आएगा? Wages, annuity, gratuity, fees, commission, perquisites et extra. अगर एडवांस सैलरी भी आपने रिसीव की है तो भी वह टैक्सेबल होगी। आपके एम्प्लॉयर ने पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो भी इट इज अ टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। नाउ वी आर मूविंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ एचआरए। सो एचआरए इज एग्जम्प्ट टू सर्टेन एक्सटेंट। सो एग्जम्पशन इज लिस्ट ऑफ द बिलो 3। पहला क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी। नेक्स्ट वन इज द इफ यू आर इन अ मेट्रो सिटी 50% ऑफ सैलरी, if you are not metro city 40% of salary, and third one is the actual HRA। इन तीनों में से जो भी कम होगा it is considered as a exempt house rent allowances। तो exempt house rent allowances का मतलब क्या होता है माया? exemption का मतलब क्या होता है? मयंक? हाँ सर। exemption का मतलब क्या होता है? हमको वो सर डिडक्ट मिलेगा ना? exemption का मतलब होता है such amount is not taxable under the income tax act। समझ में आ गया? अगर मेरा एचआरए 10,000 है और ये तीनों में से लेस कैलकुलेशन आता है 5,000 रुपीज, तो 5,000 मेरा हो गया एग्जम्प्ट। 10,000 में से ओनली 5,000 विल बी टैक्सेबल। समझ में आ गया? नाउ स्टैंडर्ड डिडक्शन, whatever your salary income you will get the deduction of 50,000 flat from your salary income. This is considered as a standard deduction। So standard deduction is maximum 50,000 or actual salary whichever is less। समझ में आ गया? अगर मेरी सैलरी सिर्फ 40,000 है तो मुझे 40,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, और अगर मेरी सैलरी 50 लाख है तो सिर्फ 50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जो भी मेरा रेंट आएगा इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से म्युनिसिपल टैक्स अगर मैंने पे आउट किया है तो वह डिडक्ट होगा। इट इज ऑन अ पेमेंट बेसिस। सो अगर म्युनिसिपल टैक्स मैंने पे किया है तो ही डिडक्ट होगा। जो भी आंसर आएगा इट इज अ नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से 30% फ्लैट आपको डिडक्शन मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑन अ बोरोड कैपिटल। सो व्हाटएवर द रिमेनिंग आंसर इज इनकम फ्रॉम योर हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस और अ प्रोफेशन। तो बिजनेस और प्रोफेशन का कैलकुलेशन कैसे होता है? आपको कहां से शुरुआत करनी है? नेट प्रॉफिट एज पर योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें से जो भी खर्चे आपको डिसअलाउ हो गए, जो इनकम टैक्स में नहीं मिलते हैं, वो क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जो भी एक्सपेंडिचर अंडर दी हेड इनकम टैक्स अलाउेबल है पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिए गए, तो उसको हम क्या करेंगे? लेस। तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। Next is the income credited under the P&L account but it is not taxable। so मेरी इनकम ऑलरेडी क्रेडिट हुई है तो मैं उसको लेस करूंगा, so मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज द डीम्ड इनकम नॉट इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट टैक्सेबल। जो भी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम क्रेडिट नहीं हुई है लेकिन वह टैक्सेबल है अंडर द हेड पीजीबीपी, दैट इज प्रॉफिट और गेन फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नाउ वी विल कंसीडर सर्टेन डिसअलाउंस। डिसअलाउंस का मतलब क्या होता है? इसका डिसअलाउंस का मतलब क्या होता है?
जो अलाउंसेस हम लोग को अलाउड नहीं किया गया है या फिर उसको हटाया गया है हम लोग के हाँ, लाइबिलिटी वो खर्चा हमें इनकम टैक्स में मिलेगा नहीं, उसे बोलते हैं डिसअलाउंस। तो पहला डिसअलाउंस क्या है? अगर आपने कोई भी एक्सपेंस ऐसा किया है जिसमें यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस और आपने टीडीएस काटा नहीं है, तो 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। ठीक है। अगर आपने कोई भी खर्चा ऐसा किया है जिसका पेमेंट आपने नॉन रेसिडेंट को किया है, ठीक है, और उसमें आपने टीडीएस काटा नहीं है, तो 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। समझ में आ गया? अगर रेसिडेंट है तो 30% डिसअलाउड, अगर नॉन रेसिडेंट है तो 100% इज डिसअलाउड। नाउ सेक्शन 40A(3), अगर आपने कोई भी कैश में एक्सपेंडिचर 10,000 से ज्यादा किया है तो वह पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउ हो जाएगा। सेम फॉर एग्जांपल, आई हैव पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस ₹15,000 टू मिस्टर ए इन अ कैश। तो ए मेरा पूरा का पूरा 15,000 का एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, मुझे इनकम टैक्स में वह अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट इज दी इन केस ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस, दिस लिमिट इज 35,000। तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए कैश पेमेंट 35,000 तक अलाउ है, उसके आगे अलाउ नहीं है। नेक्स्ट इज दी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। So under the Income Tax Act, there is a section 44AB for the purpose of audit. अगर आपको इनकम टैक्स में ऑडिट लागू है तो कौन सी सेक्शन में होगा? ऑलवेज इट इज अंडर सेक्शन 44AB। ठीक है। सो जो भी बिजनेस की इनकम, जो भी बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, उसके लिए ऑडिट इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 44AB। हालांकि इस साल इसमें अमेंडमेंट आ गया कि अगर आपकी टोटल कैश रिसिप्ट 5% ऑफ से कम है और अगर आपका कैश पेमेंट टोटल पेमेंट से 5% से कम है तो आपके लिए एक टर्नओवर की लिमिट हो जाएगी 5 करोड़ रुपए। ठीक है। नॉर्मली टर्नओवर की लिमिट ऑडिट के लिए क्या है? 1 करोड़ रुपए। लेकिन आपका अगर कैश में खर्चा 5% ऑफ टोटल पेमेंट तक है या फिर कैश में रिसिप्ट 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट तक है तो ये टर्नओवर की लिमिट 5 करोड़ हो जाएगी, यानी कि 5 करोड़ तक आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो 1 करोड़ आपकी ऑडिट की लिमिट रहेगी। अगर प्रोफेशन है तो उसके लिए टर्नओवर की लिमिट होगी 50 लाख, यानी कि 50 लाख तक ऑडिट की जरूरत नहीं है, उसके आगे ऑडिट की जरूरत है। नाउ द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर द बिजनेस लेस देन और अप टू टर्नओवर ऑफ ₹2 crore, they can go for the presumptive taxation. So if they show 8% of their turnover as a profit, then they are not required to maintain books of account. They are also not required to get the books of account audited. However, अगर उनका जो भी टर्नओवर की रिसिप्ट है वह डिजिटल है, ठीक है, तो यहाँ पे 8% की जगह आपको प्रॉफिट कितना लेना है? 6%। ठीक है। मान लो कि मेरा टर्नओवर है 1 करोड़ 80 लाख, उसमें से 90 लाख का मेरा बैंकिंग चैनल से है और 90 लाख का मेरा कैश से है। तो 90 लाख जो कैश पे है उस पे 8% लगेगा और 90 लाख जो बैंक से है उस पे 6% लगेगा। ठीक है। अगर मैं इतना प्रॉफिट दिखा देता हूँ और उस पर टैक्स पे कर देता हूँ तो मुझे ऑडिट कराने की भी जरूरत नहीं है और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इट इज एप्लीकेबल फॉर द बिजनेसेस हैविंग अ टर्नओवर अप टू 2 करोड़। अगर प्रोफेशन है तो सेक्शन आएगी 44ADA। अगर टर्नओवर आपका अप टू 50 लाख रुपीस है और आप 50% ऑफ टर्नओवर प्रॉफिट दिखाते हो तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट which is accruing as a result of a sale of a stock, bond, real estate, and what is the profit? Sale price less a purchase price. So capital gain is equal to selling price minus purchase price.
So what is the meaning of the capital asset? So capital asset में कोई भी एसेट आएगी जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल, पैटर्न, ट्रेडमार्क. However, it will not include stock, whether it is a consumable or a not, that is raw material, finished goods, WIP. फिर पर्सनल गुड्स, that is your furniture. Agriculture land in a rural area, it is also not considered as a capital asset. And certain gold bond which is notified by the government. Now short term capital asset का मतलब क्या होता है? जो भी एसेट मेरे पास 36 मंथ से लेस टाइम पीरियड के लिए है उसे हम शॉर्ट टर्म एसेट मान लेंगे. However, for the asset like equity shares, preference share, debenture or a bond listed in a stock exchange, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ऐसे शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड के लिए 12 मंथ से कम पीरियड वाले हैं, 12 मंथ या उससे कम पीरियड वाले, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे. और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है मतलब कि लैंड और बिल्डिंग, तो उसके लिए 24 मंथ की टाइम लिमिट है. ठीक है. लॉन्ग टर्म एसेट का मतलब क्या होता है? जो भी एसेट मेरे पास 36 मंथ या 36 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड की गई है उसे लॉन्ग टर्म एसेट मानेंगे. हालांकि अगर लिस्टेड शेयर से अगर 12 मंथ से ज्यादा मेरे पास है तो उसे भी लॉन्ग टर्म एसेट मानेंगे. अगर मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी है जो मैंने 24 मंथ से ज्यादा हो गए हैं परचेज किए हुए, तो उसे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लेंगे. लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर वो लिस्टेड शेयर्स का गेन है तो 1 लाख तक एग्जम्प्ट है. 1 लाख के ऊपर जो भी गेन होगा उस पर 10% लगेगा. ऑल अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल एट द रेट ऑफ 20%. अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर 15% लगेगा अगर वह लिस्टेड शेयर्स है. तो अगर नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अदर देन दिस, तो वहां पे कौन सा रेट लगेगा? IT स्लैब रेट. अदर सोर्सेस, तो अदर सोर्सेस में क्या क्या आएगा? डिविडेंड, विनिंग फ्रॉम अ लॉटरी, प्रजल्स, any gains at extra, whatever interest you are receiving, it is also taxable under the head income from other sources. Now we are moving for the deduction under the income tax act. यहां तक किसी को डाउट है 5 हेड्स में? ऐसा, मयंक, प्रग्नेश? नहीं सर. नहीं सर. तो सेक्शन 80C में हमें डिडक्शन मिलेगा किन चीज का? जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है. मैक्सिमम डिडक्शन इज 1,50,000. और ये किसे मिलेगा? इंडिविजुअल और HUF. यहाँ पे रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं लिखा हुआ है, तो कोई भी इंडिविजुअल है HUF को ये डिडक्शन मिल सकता है. कौन कौन सी चीज का? LIC का डिडक्शन मिलेगा. फिर अगर हमने होम लोन का प्रिंसिपल पे किया है तो उसका भी हमें यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा. फिर ट्यूशन फीस. सर हेलो. हाँ बोलो. सर LIC के अंदर मानो कि हम प्रीमियम तो भर रहे हैं लेकिन कोई उसके ऊपर भी लोन लिए है, ठीक है, LIC में, तो उसका इंटरेस्ट हमको इसमें मिल सकता है? नहीं मिलेगा. अच्छा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि हम जो लोन पे कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट सिर्फ आप जो प्रीमियम पे आउट करते हो उसका ही डिडक्शन मिलेगा. लोन इज अ सेपरेट थिंग. अच्छा, तो वो एग्जेम्पशन नहीं हो सकता ना? नहीं. अच्छा, फिर अच्छा. कौन सी चीज का डिडक्शन मिलेगा? अगर आपने ट्यूशन फीस पे की है फॉर योर चिल्ड्रन तो उसका भी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा. अगर आपने 5 साल की FD करवाई हुई है नेशनलाइज बैंक में विच इज अवेलेबल एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, तो उसका भी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा. नेक्स्ट इज सेक्शन. फिर एक चीज और रह गई, अगर आपने PPF में डिपॉजिट किया है पैसा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो उसका भी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल सकता है. लेकिन ओवरऑल डिडक्शन इज अप टू 1,50,000. ठीक है. सेक्शन 80CCC, सेक्शन 80CCD1 एंड सेक्शन 80C, ये तीनों सेक्शन का मिला के जो भी डिडक्शन होगा इट विल नॉट एक्सीड 1,50,000. ठीक है.
जनरल डिडक्शन मेडिक्लेम है, सो मेडिक्लेम की लिमिट क्या है? फॉर इंडिविजुअल, उसने अगर खुद के लिए मेडिक्लेम लिया है, स्पाउस के लिए लिया है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिया है, तो 25,000 तक का वो मेडिक्लेम क्लेम कर सकता है। फॉर पेरेंट्स एडिशनल डिडक्शन ऑफ 25,000 विल बी अलाउड। और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो डिडक्शन कितना हो जाएगा? 50,000। समझ में आ गया? ठीक है, तो मेडिक्लेम का डिडक्शन कितना मिलेगा? 25,000। पेरेंट्स का भी 25,000, लेकिन सीनियर सिटीजन है तो डिडक्शन कितना हो जाएगा? 50,000। नाउ एक्सपेंडिचर incurred for the medical treatment of the dependent, that is अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर किया है ऑन द पर्सन हु इज डिपेंडिंग ऑन यू, तो उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा अप टू ₹75,000। अगर वो डिसेबिलिटी सीवियर है तो 1,25,000 होगा, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगेगा कि वह डिसेबिलिटी सीवियर है कि नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंट में कौन कौन आ सकते हैं? इंडिविजुअल, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 80C में कौन कौन आएगा? सिर्फ इंडिविजुअल, स्पाउस और चिल्ड्रन, यहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं है। ठीक है, लेकिन 80DD में कोई भी डिपेंडेंट आ सकता है, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, इंडिविजुअल और स्पाउस। ATDD-B और ATDD रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा या फिर HUF को मिलेगा। यहाँ पे रेसिडेंट होना जरूरी है। फिर आएगा अपना सेक्शन 80DD-B। यहाँ पे क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीज। तो जो भी स्पेसिफाइड डिसीज के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया है उसके लिए हमें 40,000 डिडक्शन मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। और इट इज ओनली अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF। और मेडिकल ट्रीटमेंट कौन कौन से पर्सन की हो सकती है? एसएससी हिमसेल्फ और डिपेंडेंट स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स। अगर आपने एजुकेशन लोन ली है तो उसका जो भी इंटरेस्ट होगा, ओनली द इंटरेस्ट, such interest will be claimed as a deduction in the year of taking the loan and 7 next assessment year। समझ में आया? जिस साल में आपने एजुकेशन लोन ली है उस साल में एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80E, and next 7 year you can also claim as a deduction for your interest paid on your education loan. It is only available to the individual. This section is not so relevant because it is not much useful, and further it is for the loan sanctioned during the financial year 1920. So 1920 is over now, so this section is not much relevant. सेक्शन 80G में क्या है? अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हो तो उसको आपका डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने पीएम केयर फंड में डिडक्शन दिया, डोनेशन दिया, सॉरी, पीएम केयर फंड में या फिर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड या फिर सीएम डिजास्टर रिलीफ फंड में आपने डोनेशन दिया तो यहाँ पे आपको 100% मिलेगा। ऑल अदर चैरिटेबल ट्रस्ट में अगर आपने डोनेशन दिया तो 50% का डिडक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट इज डिडक्शन फॉर योर रेंट पेड। सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ दिस 3 विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। पहला क्या है? 25% ऑफ दी टोटल इनकम। नेक्स्ट इज 5,000 पर मंथ, मतलब पूरे साल का 60,000। एंड on other is the rent paid minus 10% of your salary, whichever is less is allowed as a deduction. However, there is a condition that the person must not receiving the HRA. अगर उसको HRA मिलता है तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी डोनेशन दिया है तो आपको 100% डिडक्शन उसका मिलेगा। Next is the ATTTA.
तो आपका जो भी सेविंग इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, वो कहाँ पे आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ठीक है, अगर मेरा इनकम है, इंटरेस्ट है 50,000 रुपीज सेविंग इंटरेस्ट, तो उसमें से मुझे मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 ठीक है, मुझे अंडर सेक्शन 80 इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज डिडक्टेबल रुपीज अप टू 10,000। लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीजन को डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनली नॉर्मल पर्सन को ही डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 80 TTB, दिस इज फॉर सीनियर सिटीजन। ये सीनियर सिटीजन के लिए नहीं था, ये सीनियर सिटीजन के लिए थे। तो यहाँ पे डिडक्शन कितना होगा? 50,000। तो वॉट एवर द इंटरेस्ट फ्रॉम योर एफडी और सेविंग अकाउंट, whatever your interest, same for example interest is rupees 1 लाख, तो उसमें से 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा अगर वो सीनियर सिटीजन है। तो यहाँ पे सिर्फ सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, वो भी नॉर्मल इंडिविजुअल को। यहाँ पे एफडी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस at the time of discussing the salary. Now advance tax and it's a due date. तो जो भी बंदा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अडॉप्ट करता है अंडर सेक्शन 44 AD और 44 ADA, उसको पूरा का पूरा टैक्स कब तक पे करना है? 15 मार्च तक, पूरा का पूरा टैक्स 15 मार्च ऑफ द करंट ईयर। मतलब अगर 20-21 का जो भी मेरा टैक्स होगा 20-21 का, वो मुझे 15 मार्च तक ही पे कर देना होगा। 15 मार्च 2021 तक मुझे 100% टैक्स पे कर देना होगा अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाता हूँ। तो अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जाता हूँ और इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मी, देन एडवांस टैक्स इज अंडर 4 इंस्टॉलमेंट। पहला आएगा 15 जून को 15% ऑफ माई टोटल टैक्स, दूसरा आएगा 15 सितंबर को 45% ऑफ माय टोटल टैक्स, एंड तीसरा आएगा 15 दिसंबर 75% ऑफ माय टोटल टैक्स, एंड लास्ट इज द 15 मार्च 100% ऑफ माय टोटल टैक्स। तो अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी है 2 लाख रुपए, तो 15 जून तक मुझे कितना टैक्स पे करना होगा? ऐसा मेरी टैक्स लायबिलिटी 2 लाख रुपए है टोटल एस्टिमेटेड, तो मुझे 15 जून तक कितना टैक्स पे करना होगा? 2 लाख का 15%। हाँ, कितना होगा? 30,000। मयंक, सितंबर में मुझे कितना पे करना होगा? 90,000। आओ सर 2 लाख का 45% हो गया। हाँ 90,000, लेकिन 30,000 तो मैंने यहाँ पे कर दिया है ना। हाँ तो सर 60,000 पे करना है। सर मैंने यहाँ पे 20,000 पे किया होता तो यहाँ पे 70,000 हो जाता। हाँ। मतलब टोटल यहाँ पे 45 होना चाहिए। समझ में आया? हाँ। प्रज्ञेश, दिसंबर 15 तक कितना पेमेंट करना है मुझे? कौन सा सर? दिसंबर में? दिसंबर में सर 2,40,000 यानी कि सर 40,000। सर 60,000। 60,000 नहीं आएगा। 60,000 राइट, यू आर राइट। 2 लाख का 75% कितना होगा? 1,50,000। मैंने 90,000 पे कर दिया। 90,000 चले गए। ठीक है, और रिमेनिंग जो भी होगा वो मेरा मार्च में आ जाएगा। हाँ। नाउ इंटरेस्ट ऑन अ लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो जो भी मैंने एडवांस टैक्स लेट पे किया है उसका मुझे इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234C। कितना लगेगा? 1%। पहला इंस्टॉलमेंट है 15% का। जो भी मैंने अगर 15% की जगह मैंने 12% पे किया तो 3% का जो भी लेस पेमेंट किया उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में अगर 45% मुझे पे करना था लेकिन मैंने 40% ही पे किया तो 5% की जो भी अमाउंट होगी उस पर इंटरेस्ट लगेगा। अंडरस्टैंड? इसी तरह यहाँ पे अगर मैंने 60% ही पे किया
तो रिमेनिंग 50% जो शॉर्टफॉल हुआ उस पर टैक्स इंटरेस्ट लगेगा। और सपोज यहाँ पे मैंने 80% का टैक्स पे किया, 100% का नहीं किया, तो 20% की जो भी अमाउंट होगी उस पे ये इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे हर एक इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट लगता है अंडर सेक्शन 234C। अगर मेरी सेक्शन है 234B, तो यहाँ पे इंटरेस्ट तभी लगेगा अगर मैंने एडवांस टैक्स 90% से कम पे किया है। मतलब अगर मेरी 2 लाख की टैक्स लायबिलिटी है उसका 90%, अगर मैंने 1,80,000 से कम एडवांस टैक्स पे किया है तो यहाँ पे जो भी शॉर्टफॉल होगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा एंड इट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है? सर तो जो पहले आपने बताया था कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 हाँ। दिसंबर, और वो किस सेक्शन में आएगा फिर? 234C। यहाँ पे हर एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लगता है, जो जितना भी शॉर्टफॉल हुआ। यहाँ पे आपको पूरे साल का लेना है। टैक्स पेयर मस्ट पे एटलीस्ट 90% ऑफ एडवांस टैक्स। अगर 90% का एडवांस टैक्स पे कर दिया है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 89% किया है तो जो भी शॉर्टफॉल होगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा 234B का। समझ में आ गया? नाउ वी आर मूविंग फॉर योर एग्जम्पशन लिमिट। तो जो भी नॉर्मल इंडिविजुअल है, ठीक है, 60 साल से नीचे वाला, तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड अबव 10 लाख 30%। अगर उसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 80 ईयर्स से कम है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख अगेन 20%, अबव 10 लाख 30%। नेक्स्ट इज अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, दैट इज हिज एज इज 80 ईयर्स और अबव, 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं। 5 to 10 20%, अबव 10 30%। पार्टनरशिप फॉर्म है तो जो भी प्रॉफिट होगा उस पर फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 30,000 इज योर टैक्स लायबिलिटी। कंपनी पे कौन सा टैक्स लगेगा? अगर प्रीवियस ईयर में 17-18 में टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, ठीक है, तो मैं 25% वाली स्कीम अडॉप्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल स्कीम है 30% वाली भी, जो अब लेस हो गए 29 होने जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल स्कीम है तो ए टैक्स लगेगा अपना, अदरवाइज आई कैन अडॉप्ट 25%। और इस साल में एक अमेंडमेंट आ गया, अगर मैं डिडक्शन क्लेम नहीं करता हूँ, सर्टेन डिडक्शन और एग्जम्पशन, तो मुझे 22% का ऑप्शन दिया गया है। वॉट एवर माई प्रॉफिट आई हैव टू पे 22% टैक्स, देन ऑल्सो इट विल रन। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन है 15%। 15% ऑफ प्रॉफिट विल बी कंसिडर्ड एज अ टैक्स। बट यहाँ पे ये दोनों पे आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं मिलेंगे, ठीक है। फॉरेन कंपनी के लिए रेट कौन सा है? 40%। All other HUF, AOP, BOI और artificial judicial person up to 2,50,000 नो टैक्स। तो यहाँ पे कौन सी लिमिट आएगी? नॉर्मल इंडिविजुअल की, ठीक है। HUF, AOP, BOI, यहाँ पे नॉर्मल इंडिविजुअल को जो स्लैब लागू होते हैं वही आ जाएगा। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं। अगेन नेक्स्ट 2 लाख पर 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड अबव 10 लाख 30%। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। पहले 10,000 तक 10% टैक्स, अगले 10,000 तक 20% टैक्स एंड अबव 20,000 वॉट एवर द इनकम 30% टैक्स। लोकल अथॉरिटी के लिए 30% टैक्स। अब कोई मुझे बताएगा LLP के लिए रेट ऑफ टैक्सेशन क्या है? 30%। 30%। LLP is considered as a firm under the Income Tax Act. Due date of filing the return.
So whatever the due date we are discussing is for the normal year. This is the abnormal year, that is your financial year 1920 का रिटर्न, फाइनेंशियल ईयर 1920 का रिटर्न हमें कब भरना है? असेसमेंट ईयर 2021 में. सो दिस इज एबनॉर्मल ईयर. सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डेट ऑलरेडी सारी की सारी डेट एक्सटेंड कर दी है. तो अगर आप 1920 की ड्यू डेट देखोगे तो ये ड्यू डेट नहीं आएगी, ठीक है. लेकिन नॉर्मल ईयर में ड्यू डेट आएगी अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और आप ऑडिट के लिए लायबल नहीं हो तो 31 जुलाई. अगर आप ऑडिट के लिए लायबल हो तो इनकम टैक्स रिटर्न कब भरना है? 31 अक्टूबर को. और ऑडिट रिपोर्ट कब फाइल करना है? 30 सितंबर को. समझ में आ गया है? ऑडिट थे तो 30 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर देना है और रिटर्न कब फाइल करना है? 31/10 तक. अगर ऑडिट नहीं है तो 31/7 will be considered as your due date. Now the TDS. So under section 192 it is applicable on the salary income and it is the rate as per your slab rate. Next is मैं आपको important section करवा देता हूँ जो कि एप्लीकेबल होती है नॉर्मल लाइफ में, ठीक है. सो 192 इज योर सैलरी इनकम. फिर जो भी डिविडेंड होता है, डिविडेंड पे 2500 से ज्यादा जो भी डिविडेंड है उस पर 10% टैक्स लगेगा, टीडीएस कटेगा आपका. फिर 194A दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन एफडी एट एक्स्ट्रा. अगर 40,000 से ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है तो ये उस पर 10% का आपको टीडीएस डिडक्शन होगा. नेक्स्ट इज दी 194C. जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर इंडिविजुअल बिल 30,000 से कम है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. अगर 30,000 से ज्यादा इंडिविजुअल बिल है तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 1% रेट, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ 2% रेट. अगर एक बिल 30,000 से कम है लेकिन ऑल ऑफ द बिल सब मिला के 1 लाख से ऊपर हो जा रहा है तो भी टीडीएस कटेगा. इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 1%, अदरवाइज 2%. नेक्स्ट इज द सेक्शन 194H दैट इज फॉर कमीशन. सो अप टू 15,000 देयर इज नो टीडीएस लायबिलिटी. अबव 15,000 अगर 15,000 से अप हो गया तो पहले रुपये से 5% टीडीएस कट हो जाएगा. रेंट पे डिडक्शन अप टू 2,40,000 देयर इज नो लायबिलिटी फॉर टीडीएस डिडक्शन. अगर 2,40,000 से ज्यादा हो गया तो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा. अगर प्लांट एंड मशीनरी का रेंट है तो 2% टीडीएस डिडक्ट होगा. नेक्स्ट इज द सेक्शन 194J दैट इज फॉर प्रोफेशनल फी. तो प्रोफेशनल फी किसको पे करते हैं हम? डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, उसको जो भी हम प्रोफेशनल फीस पे करते हैं 30,000 तक कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है. अगर 30,000 से ज्यादा अमाउंट हो गई तो पहले रुपये से 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज द टीडीएस ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट. तो टीडीएस कब हमें भरना है? अगर प्रोफेशन में एनुअल फीस देखनी होती है कि कैसे होती है? कौन से सेक्शन में? 194J में. हाँ. मान लो कि आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है. मैंने आपको बिल रेज किया अभी 15,000 का से, अभी मैंने आपको बिल रेज किया 15,000 का, ठीक है. तो अभी आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मैंने नेक्स्ट बिल आपको रेज किया 45,000 का, ठीक है, तो अब टोटल पेमेंट कितना होगा? 45 प्लस 15 टोटल कितना होगा? 60,000. तो ये पूरे के पूरे 60,000 पे आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? ओके सर. ओके सर. टीडीएस की ड्यू डेट क्या है? अप्रैल का टीडीएस की ड्यू डेट है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. तो अप्रैल का होगा टीडीएस का पेमेंट 7th मई को. तो अप टू फरवरी डेट इज द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. लेकिन मार्च के टीडीएस की डेट है 30 अप्रैल, ठीक है. मार्च के लिए 1 महीना दिया गया है. हाउएवर द गवर्नमेंट डिडक्टर के लिए 1 महीना नहीं दिया गया है, उनके लिए 7 days दैट इज 7th अप्रैल.
आपको टीडीएस रिटर्न कब फाइल करना है? क्वार्टरली, हर एक क्वार्टर का 1 महीने के अंदर। अप्रैल के जून का 31 जुलाई इसे ड्यू डेट, जुलाई से सितंबर का 31 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर का 31 जनवरी एंड जनवरी से मार्च का 31 मई। ठीक है, नाउ वी आर कंसीडरिंग द रेसिडेंटल स्टेटस पार्ट। तो रेसिडेंट किसे मानेंगे? कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वह 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में है तो उसे रेसिडेंट मान लेंगे। अगर 182 डेज से कम है लेकिन 60 डेज या फिर उससे ज्यादा इंडिया में है और पुराने 4 साल में 365 डेज इंडिया में है तो उसे भी रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है, अब इंडिविजुअल के लिए 3 कैटेगरी है, इंडिविजुअल और एक्यूएफ के लिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उससे बोलेंगे हम नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अगर दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो वह रेसिडेंट हो गया। लेकिन फिर ये 2 कैटेगरी आएगी, अगर वह पुराने 10 साल में से 2 साल रेसिडेंट थे तो वो एंड पुराने 7 साल में 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में है, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वह हो जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो हो जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अंडरस्टैंड? एक्यूएफ के लिए कौन सी कंडीशन है? उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब अगर 25% भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो उसको रेसिडेंट मान लेंगे। और दूसरी 2 कंडीशन, एडिशनल 2 कंडीशन अगर करता फुलफिल कर देता है तो एक्यूएफ विल बी कंसीडर्ड एज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, फर्म के लिए क्या है? अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया तो उसे रेसिडेंट मान लेंगे, और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया में है तो उसे नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। कंपनी के लिए क्या है? अगर वह इंडियन कंपनी है तो इट इज ऑलवेज रेसिडेंट, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट। अगर वह इंडियन कंपनी नहीं है तो उसका अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो उसे रेसिडेंट मान लेंगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट, सेटअप ऑफ लॉसेस। ठीक है, अगर आपकी कोई भी इनकम में लॉस हुआ है तो वह आपको दूसरी कोई भी इनकम के सामने सेटअप होगा। अगर वो सेटअप नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट ईयर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और नेक्स्ट ईयर की इनकम के सामने वो सेटअप हो सकता है। उसकी कंडीशन क्या है? अगर स्पेकुलेशन बिजनेस है तो उसका लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के सामने ही सेटअप होगा। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 35 एडी, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो वह सिर्फ अंडर द इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस में ही सेटअप होगा। नेक्स्ट इज दी, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो इट विल बी सेटअप अगेंस्ट योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। Further, loss from activity of owning and maintaining the race horses will be set up only against the same activity. ठीक है, तो ये 4 जो भी इनकम है वह सेम एक्टिविटी की इनकम के सामने ही सेटअप होगी और कोई भी इनकम के सामने सेटअप नहीं होगा। नेक्स्ट इज दी, आपका जो भी बिजनेस लॉस है, बिजनेस लॉस वो सैलरी के इनकम के सामने सेटअप नहीं होगा। कैपिटल लॉस है वो कोई भी इनकम के सामने सेटअप नहीं होगा। समझ में आया? कैपिटल गेन के सामने ही कैपिटल लॉस सेटअप होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस विल बी सेटअप ओनली अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
Next is the speculation loss. Will be set up only against speculation profit. Specified business loss covered under section 35 AD will be set up only against your specified business income. Now हम लॉस कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? अगर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो वह इनडेफिनेट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद हम उसको कौन सी इनकम के सामने सेटअप कर पाएंगे? कोई भी इनकम, सैलरी के अलावा कोई भी इनकम के सामने हम सेटअप कर पाएंगे। अनएब्सॉर्ब्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस, तो हम उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद सिर्फ वह हाउस प्रॉपर्टी के सामने ही सेटअप होगा और कोई इनकम के सामने सेटअप नहीं होगा। बिजनेस लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड लॉस will be set up only against your business income. Speculation loss will be carried forward for your 4 assessment year and it is set up from your income from speculation business. Specified business का लॉस है वो indefinite period तक कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन it is set up from profit from specified business. Long term capital loss will be set up only against long term capital gain. It will be carried forward for 8 years. Short term capital gain will be set up against short term or a long term capital gain. So long term सिर्फ long term के सामने ही सेटअप होगा, लेकिन short term दोनों के सामने सेटअप होगा और वह 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हालांकि कैपिटल लॉस कोई भी है वह कैपिटल गेन के सामने ही सेटअप होगा और किसी इनकम के सामने सेटअप नहीं होगा। अंडरस्टैंड? हम लॉस किस कैटेगरी में सेटअप करेंगे? जो भी मेरा प्रॉफिट है, मान लो मेरा प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपीस, तो पहला कौन सा जाएगा? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। मेरा डेप्रिसिएशन है सपोज 10 करोड़ रुपीस। उसके बाद आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, मान लो मेरा 50 करोड़ है। उसके बाद आएगा अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन अ साइंटिफिक रिसर्च, अगर हो तो इस सीक्वेंस में लॉस सेटअप किए जाएंगे। समझ में आया? लास्ट जो भी होगा वो होगा अपना अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये लास्ट क्यों ले रहे हैं हम अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? बिकॉज इट इज कैरी फॉरवर्ड फॉर इनडेफिनेट पीरियड। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप कितने भी सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 100, 200, 300, ठीक है। लेकिन बिजनेस लॉस आपको 8 साल में ही मिलेगा, तो उसके लिए आपको पहले बिजनेस लॉस सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? आपको पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। फर्दर for the purpose of carry forward of loss, return filing within your due date under section 139 is mandatory. अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस नहीं मिलेगा। However, you can carry forward loss from house property and unabsorbed depreciation even though you have not filed return within your time limit. समझ में आया? ये दोनों के अलावा, दैट इज योर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के अलावा आपको कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा अगर आपने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं किया है तो। सो दिस इज द डिस्कशन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट 8 to 9 lecture. So anybody had doubt? No sir. No, sir. Clear Pragnesh? Yes sir. मयंक? हाँ सर। आपने काफी सारा कुछ अटेंड नहीं किया है तो आपको कुछ डाउट है? नहीं सर, मेरा वो थोड़ा अभी बीच में वो कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था सर। तो किसमें डाउट है बोलो? सर नहीं, वैसे अभी ठीक है, वो ईशा समझा देगी मुझे थोड़े बाद में, अगर कुछ डाउट होगा तो मैं उससे पूछ लूंगा। ईशा, आर यू ओके? आपको समझ में आया? यस सर। ये पूरा का पूरा रिवीजन था, तो हमने पूरा का पूरा भी कवर करना था विद इन 1.5 आवर, तो हमने थोड़ा सा फास्ट ले लिया। सर जो अभी आपने पहले जो पढ़ाया था इनकम टैक्स का, जो मतलब मेन जो प्रेजेंटेशन था, आप क्या उसका पीडीएफ मेल कर पाएंगे? वो पीडीएफ हाँ मेल हो जाएगा, मैं आपको समीर सर को बोल दूंगा, ठीक है, वो मेल हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है सर। इसके एग्जाम वगैरह भी होगी क्या इनकम टैक्स का? एग्जाम होगी हाँ।
कब होगी सर वो एग्जाम? वो मुझे पता नहीं है, समीर सर से कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी को डाउट हो तो अभी बता दो। सर वो एक पूछा था ना मैंने LIC वाला केस। तो LIC का जो भी आपने लोन लिया है, ठीक हाँ। है, अगर वो फॉर द पर्पज ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी, हाँ। तो आपकी जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, हाँ। उसके सामने आप वह डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। ठीक है, इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? इट इज फॉर योर हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया? यानी कि सर जैसे हम लोग प्रीमियम बता रहे हैं डिडक्शन में, ठीक है सर, तो हमने जो उसके जो हम LIC भर रहे हैं उसके ऊपर हमको लोन मिली है, यानी कि लोन ली है, मिली तो है, पर उसकी वो लोन कंडीशन कौन से पर्पज के लिए ली है आपने? अच्छा पर्पस क्लियर होना चाहिए ना कि हाउस का है तो फिर क्लियर होना हाउस के चाहिए। लिए है अगर तो हाउस। बिजनेस में यूज कर रहे हो तो आप बिजनेस के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन अपने अच्छा पर्सनल पर्पज से लिया है। सिम फॉर हाँ हाँ एग्जांपल, आपने अगर कोई पर्सनल एसेट परचेज करने के लिए LIC के लोन ले ली, ठीक है, हाँ। उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। You अच्छा are अगर getting फेस टू फेस। under section 83 for your LIC premium only. ओके ओके। तो Okay? यानी कि हाउस में अगर हाउस के सामने लिया है, हाउस के बेस पे लिया है, तो उसको हाउस के हिसाब से उसको वहां पे हाउस का जो इंटरेस्ट LIC बता रहे। हाउसिंग फाइनेंस में से आपको लोन मिल जाएगी ना, LIC हाउसिंग हाँ। फाइनेंस तो आपकी होम लोन हो गई, तो आपकी अच्छा इनकम यानी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा और सेक्शन अच्छा 80C में प्रिंसिपल का पोर्शन का डिडक्शन मिलेगा। अच्छा ओके सर ओके। ओके, ठीक, क्लियर सर क्लियर। क्लियर? तो शैल वी यस एंड सर नाउ? यस सर। सर इसका PPT जो है ना पूरा सर, मेल या फिर सर वो आप स्टडी मटेरियल में डाल दोगे तो देख के रिफर करेंगे हम। हाँ, मैं वो अभी ही ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा समीर सर को। ठीक है, हाँ वो डाल दो ना, उनको बोला था, वो बोल रहे थे कल डाल देंगे, लेकिन आपका लेक्चर बाकी था इसलिए रह गया है। ओके, ठीक है। ओके तो थैंक यू ओके वेरी सर, मच। थैंक्स अ लॉट सर। ओके, थैंक्स अ गुड लॉट नाइट। सर। नाइट जर्नी सर विथ यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।